This is Chelsea Football Club, दोस्तों. This is Chelsea. You know, football works in mysterious ways, in beautiful ways, in fact. 3 years ago, Enzo Fernandez signed for Chelsea in that dramatic saga with Benfica, जहाँ पे हम लेट नाइट तक डील्स कर रहे हैं. रूई कोस्टा से लड़ गए हमारे ओनर्स एंजो फर्नांडेस को चेल्सी लाने के लिए, एंड इवेंचुअली ही डिड कम. एंड उस चीज को आज 3 साल हो चुके हैं, तो उस चीज की आज एनिवर्सरी थी. एंड इस दिन पे एंजो फर्नांडेस स्कोर्स अ विनर, a crucial winner at Stamford Bridge, makes the score 3-2, celebrates with his shirt off. This is absolute cinema, मेरे दोस्तों. This is what you call football. This is why we love football. पूरे मैच की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, so stay tuned till the end. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो. And let's get straight into today's video. Okay, first of all, I'm in this video हम negatives की बात करेंगे, क्या improve करना चाहिए, लेकिन वो हम करेंगे बाद में. I'm going to review this match in reverse because I think अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस win से. I'm really happy with what my team showed me today. So I'm going to start this review backwards. Okay, first of all, second half में we were balling out. ठीक है, we were absolutely balling out. First half में we know कि we were not playing well, we were absolutely not ourselves. Maybe वो fatigue था नापोली के game का, I don't know, but we start off very very well. I mean, second half में पहले 10 मिनट खराब थे, लेकिन उसके बाद when that first goal came in, it was fabulous. Credit where it's due, and credit to Liam Rossinier, because एक हफ्ते में हमने 2 comeback wins निकाली है, which is very very actually says a lot about the mentality of the players. And Chelsea 1987 के बाद 2-0 down होके 3-2 ना 1987 से नहीं जीते थे, लेकिन अब 1987 के बाद हमने 2-0 की एक डेफिसिट से 3-2 विन निकाली है. सोच के देखो, दिस इज हाउ बिग दिस इज. 30 साल हो चुके उस बात को. तो क्रेडिट टू लियम रोसिनियर, उनके चेंजेस वर्कड, उनके सब्स्टिट्यूशंस वर्कड. यू नो, कुकुरेला, फोफाना, जॉ पेड्रो, ऑल डिड देयर जॉब wonderfully. Even Reece James, when he came on, I think all of them did their job and played really good. First half was absolutely dreadful, as I said. उसकी बात हम आगे करेंगे, but João Pedro को मैंने कैप्टन किया था FPL में. He got benched, but then he came on, he gave the assist, he scored the goal as well. The goal which actually sparked it all, because 2-1 उन्हीं के गोल से हुआ था. एंड उस गोल के लिए क्या डिलीवरी थी वेस्ली फोफाना की. what a ball that was from him, भाई. great ball and great header, great leap from João Pedro to score that goal. And उसके बाद से वेस्ट हैम थोड़ा सा बैक फुट पे आ गए थे. they were not able to defend. and कहीं ना कहीं वेस्ट हैम के जो मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर्स थे वो समरविल थे, जैरेड बोएन भी थे. जैरेड बोएन को कुछ इंजरी हो गई थी, he was taken off, but समरविल was balling out. I think अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात करें वेस्ट हैम के लिए, तो it has to be समरविल there. समरविल even scored a goal. And Chelsea के defenders, even Caicedo was having a tough time to contain Somerville. That is how great he was performing. And Somerville भाई मेसी की तरह था पिच पे, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था भाई आज उसको. I don't know क्या खा के आया था वो, but he was doing very well. And उसके बाद अगर हम मैच की आगे बात करें ना, तो इवन जॉ पेड्रो के गोल के बाद we were just at it. मतलब we kept on attacking, फ्रंट फुट पे हम खेल रहे थे. and that is how I want my club to play, that is how I want my team to play, and that is what we did. Eventually लग रहा था कि मे बी गोल ना आ पाए. हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा. वेस्ट हैम काउंटर पे कभी कभार जा रहे थे, थ्रेटनिंग लग रहे हैं वो, बट बहुत कम हो रहा था वो. लेकिन जॉ पेड्रो अगेन वहां पे लग रहा था मे बी ही कैन गेट द सेकंड गोल, बिकॉज क्लियरली वो बंदा फॉर्म में अभी. लेकिन द वन हु गॉट द सेकंड गोल वाज अनदर सब्स्टिट्यूट, एंड दैट वाज मार्क कुकुरेया. एंड बॉल आती है मालो गुस्टो के पास, वो फिर से डालते हैं बॉक्स के अंदर. उनका एक लूपिंग हेडर होता है जो कि डिलैप ऑलमोस्ट स्कोर करते हैं, बट वो पोस्ट पे लगता है. एंड Marc Cucurella follows it up and scores the 2-2 goal. At that point, I think 15-20 मिनट रहते थे मैच में, and I was like, okay, we can win this. And eventually we did. We kept knocking at their door, and eventually we did score. We did make the score 3-2. And assist किसने दिया? João Pedro ने again. As I said, it was very poetic of Enzo Fernandez of all people to score. And that is why I love this football club. ये जिसकी जर्सी है भाई, that is why I love this football club. And जिस वजह से Enzo Fernandez ने फिर celebrate किया with the fans, beautiful, absolute scenes भाई, absolute beautiful scenes to see. बहुत मजा आया वो देख के. And I think we deserved the win. अगर हम second half के basis पे मैच देखें तो we absolutely deserved the win. जैसे हमने खेला, जैसा players ने response दिखाया, manager
ने जैसे चेंजेस किए, क्रेडिट टू हिम एज वेल, जैसे प्लेयर्स ने एकदम टर्न अप किया, प्लेयर्स लाइक काइसेडो, दीज प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग वेल इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन उसके बाद चेंजेस हम करते हैं, रिजल्ट्स हमको दिखते हैं उसके बाद, एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम। जिस वे से हमने खेला भाई, that was beautiful, that was beautiful, fantastic to see in that second half. और वापस थोड़े नेगेटिव्स की बात करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन टू टोडिबो भाई, व्हाट द हेल वर यू थिंकिंग? यू डिजर्व दैट रेड, यू डिजर्व जेल टाइम, यू डिजर्व जेल टाइम फॉर डूइंग दैट भाई। गला पकड़ रहा है वो जॉ पेड्रो का, गला पकड़ भाई, ये रेसलिंग नहीं है, WWE नहीं है, इवन उसमें गला नहीं पकड़ते लोगों का भाई। तू गला कैसे पकड़ रहा है, तू गला कैसे पकड़ रहा है उसका भाई? इसको जेल भेजो इस चीज के लिए भाई। रेड कार्ड absolutely deserved, absolutely. Also give him a 3-match ban, please. 5-match ban at least, 5-match ban, okay? And even Adama Traore, even that wrestler, Adama Traore is who started this, but bhai, it was very pathetic from West Ham. वहां से they had already lost, मतलब उनके heads were gone, but जो उसने किया जॉब को गले से पकड़ा, है कौन भाई तू, है कौन तू? निकल तू यहाँ से भाई, no one needs you, no one needs you. His team even didn't need him. रेड कार्ड मिल जाता उसको, निकल जाता है। तो हिज लुक ऑन द फेस भाई, लुक ऑन द फेस, इतना भाई क्या क्या बढ़िया लुक थी जब वो निकल रहा था रेड कार्ड लेके। मैं तो आत्मा तृप्त हो गया मेरी वो चीज देख के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर थोड़े नेगेटिव्स की बात करें तो देखो, ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज बहुत अच्छी विन थी। आई एम वेरी हैप्पी, वी आर इन द टॉप 4, बहुत इंपॉर्टेंट विन, मेंटालिटी शो करी, करेज शो किया, ग्रिट शो किया, ऑल ऑफ दैट। बट कुछ चीजें हैं जिन पे बात करना चाहिए, एंड वो है हमारी स्क्वाड डेप्थ। Because if you need your first team players to come off the bench to beat a team like West Ham who are in a relegation fight and उनके बिना मैच नहीं निकाल पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्क्वाड डेप्थ में प्रॉब्लम है। and that is what I have been saying for a while now, because players like Gittins, Garnacho had a disaster class. He was the disaster of the match. They say they are man of the matches in a game, but I say there is a disaster of the match as well, and that was Garnacho, unfortunately, and I think that speaks a lot about him. He was pathetic. Gittins unfortunately got injured, but उससे भी पहले उन्होंने कुछ नहीं किया था। Palmer looked off today to me again, not himself, could have scored a 4th, but उन्होंने वो चांस मिस किया उधर लास्ट में। Neto को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, but I think Neto when he came on he looked absolutely bright as well. He did absolutely good in my opinion. And उसके बाद भाई Garnacho तो pathetic था, बहुत ही गंदा Garnacho ने खेला, छी भाई, छी, बहुत ही गंदा उसने खेला था। And आई थिंक दिस इज आवर प्रॉब्लम। मतलब हमारे जो बेंच से प्लेयर्स आते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई चलो ठीक है, जॉ पेड्रो जैसे प्लेयर्स हो गए, कुकुरेला जैसे प्लेयर्स हो गए, इवन हार्टो वाजंट गुड, तो ये प्लेयर्स बेंच कर देंगे हमारे मेन प्लेयर्स को, एंड इवेंचुअली ऐसे गेम्स में परफॉर्म कर पाएंगे जो कि रिलेटिवली छोटे मैचेस हैं जहाँ पे हमारे बड़े प्लेयर्स को रेस्ट मिल सकता है। इवन फफाना को रेस्ट मिल सकता था, बट नहीं, बदेशीले ने हगा, इन सब ने हगा। वेस्ट हैम से जो हमने 2 गोल खाए भाई, पहला गोल तो फ्री गोल था, मतलब कैसे ही पड़ गया, सब सो रहे हैं डिफेंस में। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो स्क्वाड बिल्डिंग है वो अच्छी नहीं है। इन प्लेयर्स पे आप नहीं रिलाई कर सकते। आपको वेस्ट हैम जैसी टीम जो रिलीगेशन फाइट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आपको लाना पड़ रहा है इन सब अपने मेन स्क्वाड को, ताकि वो उनको हरा सके। एंड दैट इज माई प्रॉब्लम, इवन दो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। बट नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। लाइक यू कैन नॉट हैव गिटन्स, यू कैन नॉट हैव गार्नाचो, प्लेयर्स लाइक दीज प्लेइंग फॉर योर क्लब व्हेन दे आर प्लेइंग लाइक दिस। गार्नाचो महीने में 1 गोल मारता है, उसके बाद गायब हो जाता है। आर्सेनल के अगेंस्ट बंदे ने 2 मारे, तो अब शायद 2 महीने के लिए गायब ही रहेगा। एंड दैट इज माई प्रॉब्लम विद द स्क्वाड बिल्डिंग, एंड आई होप we can fix it somehow or these players can improve. But first half में भाई it was pathetic, and I think कुछ हद तक it was down to the manager, but it was more on the player side, ऐसा personal मेरा मानना है। But all of it is at one corner, because हमने win निकाल ली, तो in hindsight it doesn't really matter, but we need to improve this, and I hope we improve this really fast. बट दैट इज इट फॉर द मैच रिव्यू गाइस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो। तुमको क्या लगता है, हाउ डिड यू रिएक्ट आफ्टर द विन? भाई मेरे तो आवाज चली गई भाई, बहुत लॉन्ग हम कर रहे थे, बट बहुत मजा आया भाई, वो विनर देख के बहुत मजा आया मुझे तो भाई। आई लॉस्ट माय वॉइस सीरियसली, बट या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑफ द चेल्स। कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है, बोला भी नहीं जा रहा, एंड एंजॉय दिस विन भाई। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।